मार्केटिंग रोल में करियर बनाना है देन इस वीडियो को पहले देख लेना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे मिथ होते हैं जिसको सोच के स्टूडेंट्स ज्वाइन तो कर लेते हैं मार्केटिंग का करियर एंड देन दे रिग्रेट इट। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या मार्केटिंग में सेल्स होता है एंड एवरीथिंग। येस डेफिनेटली सेल्स तो होता ही है, बट अ सिंपल येस और नो कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। इसलिए मैं एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ ऑन मार्केटिंग प्रोफाइल विच विल टेल यू व्हाट डज द करियर पाथ लुक लाइक, व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स अंडर मार्केटिंग, व्हाट डज द सैलरी एंड वर्क लाइफ लुक लाइक, व्हाट इज द टाइप ऑफ CV you should prepare for marketing roles and what are the skills that you should have. मेरे बहुत सारे friends from IIM Ahmedabad are in FMCG firms like HUL, PNG, Kimberly Clark. So this video is completely research based on their inputs. So let's start this, and before we go ahead, do not forget to subscribe to the channel for more such videos related to MBA. So let's start with a career path and we'll discuss the career path in a typical FMCG firm. So marketing profile के लिए FMCG firms are the best ones that you can get, and if we consider the typical career path in a firm like say HUL, then उनका career start होता है typically management trainee profile से। management trainee basically 1 year का program होता है where you are put into different roles, maybe 3-4 months का sales, 3-4 months का marketing, 3-4 months का e-commerce. You will be rotated across different roles, and after you clear this management trainee program for 1 year, most probably you will be put in the ASM role, which is the area sales manager role. As an area sales manager, you will be dealing with the sales officers of your company in a particular region. मान लो आप HUL में वर्क कर रहे हो एंड आप मैनेज कर रहे हो बिहार का कोई एक रीजन, सो वहाँ पर के जितने भी सेल्स ऑफिसर है फ्रॉम HUL आप उनको मैनेज करोगे। वहाँ जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं फ्रॉम योर पर्टिकुलर कंपनी, HUL के जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स है उस रीजन में, आप उनको भी मैनेज करोगे। एंड योर वर्क बेसिकली विल बी अंडरस्टैंडिंग कि कोई प्रोडक्ट अगर सेल नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स पुश नहीं कर पा रहे, तो क्यों, रीज़न क्या है उसका। इफ सम आइटम इज गेटिंग स्टॉक्ड आउट तो उसको रीफिल करवाना, मेकिंग श्योर इट्स बीइंग रीफिल्ड ऑन टाइम, मेकिंग श्योर देयर इज नो स्टॉक आउट, स्टॉक्स मेंटेन करना, ये सब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ता है एंड आपको सॉल्व करना पड़ता है एज एन एरिया सेल्स मैनेजर। सो दिस इज अ टिपिकल सेल्स रोल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मार्केटिंग प्रोफेशनल। इन दिस पर्टिकुलर tenure you will be doing a lot of field visit, you will be very close to the market, and that's why understanding of the market comes in this particular tenure only. And anyone who wants to do good in their marketing stint has to do well in the sales stint, has to understand the market, and that's why most of the major FMCG firms will take you through this sales stint. So you would be in this ASM role for 2-3 years typically. Beyond this, the trajectory can vary for different people and also depending on preferences and the company's requirement. So someone can continue in the sales role, they might become regional sales manager, so basically the area broadens for them. Someone might enter into core marketing and become a brand manager of a particular product. और अभी recently काफ़ी सारे companies digital commerce में भी role offer करते हैं, so basically you can enter digital commerce or e-commerce as well. As a brand manager you would be responsible for managing a complete product, so उस product का complete details कि customer pull कैसे create करना है, how to position that particular product in the market, what types of advertisement needs to be created, where to launch that particular product, completely एक brand manager का work रहेगा. And beyond that, after brand manager आप senior brand manager and so on progress करते रहोगे. From one product maybe आपको एक category दे दिया जाएगा, maybe health care हो गया या फिर maybe safety hygiene कुछ हो गया. category बहुत सारी होती है कि FMCG firm में आपको कोई भी एक category दे दिया जाएगा to manage. So from one product you will typically extend to more and more products as you go ahead in this particular field. Within digital commerce and e-commerce as well, now there will be different roles. There might be roles like key account managers. So अगर कोई company sell करता है on Amazon and on Flipkart, there will be different key account managers for both platforms. You can either enter into these or there will be other roles as well, digital commerce analytics, and बहुत सारे role होते हैं within digital commerce as well. So you can be offered these kind of roles as well. Typically these kind of roles अभी recently FMCG firms काफ़ी offer कर रहे हैं, so you have a good chance of entering this particular profile as well. And once you have spent significant time in that particular firm, from brand management हो या फिर आपका core marketing हो या digital commerce हो या sales हो, आप typically progress करते हो towards general management roles, and that is more like you become a VP of a particular country, of a particular region, and आप उन तरीके के roles में चले जाते हो. So it's more like overall management of the firm rather than being very particular about selling one product, positioning one product या फिर कोई एक particular region के sales manage करना. आप typical organization management में चले जाते हो in your future years. So this is a typical career path
एन FMCG फर्म, बट सेल्स रोल बस FMCG फर्म में नहीं ऑफर किया जाता है। सेल्स एंड मार्केटिंग रोल काफ़ी सारे डिफरेंट फर्म्स भी ऑफर करते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग रोल। फॉर एग्जांपल एक IT कंपनी भी सेल्स रोल के लिए हायर करता है, बिजनेस डेवलपमेंट भी बुला सकते हैं उसको, तो वो भी सेल्स प्रोफाइल देता है। बैंकिंग में भी आप सेल्स रोल में जाते हो, बट दोज आर डेफिनेटली नॉट एज रेप्यूटेड एज FMCG फर्म का सेल्स रोल। यूजुअली अगर आप बैंक्स देखो या IT में देखो तो वो टॉप IIMs में नहीं जाते हैं फॉर सेल्स प्रोफाइल। येस, देयर विल बी सम कॉलेजेस वेयर दे विल गो फॉर सेल्स रोल्स एज वेल, बट टिपिकली टॉप IIMs अवॉइड करते हैं। एंड सेल्स प्रोफाइल आप अगर मैं टॉप IIMs की बात करूँ, इट विल यूजुअली बी इन FMCG फर्म ओनली। एंड ये डिफरेंस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको सैलरी फिगर्स बताऊंगा इन टिपिकल रोल्स के। बट बिफोर वी मूव टू द सैलरी एंड वर्क लाइफ, लेट मी टेल यू, अगर आप वर्क कर रहे हो एंड आप MBA परस्यू करना चाहते हो ऑनलाइन मोड में विदाउट लीविंग योर जॉब in marketing specialization or in any other specialization as well, then you can use a website to shortlist those colleges which are government approved for your online MBA, and a particular website will help you there, and that is College Vidya. So if you go to this website, there are various UG, PG and other online courses here. You can select the course that you want, fill up some basic details, then answer a few basic questions. The AI model will then accordingly list the suitable online universities or education providers for you. All the online universities listed here are government approved, and you get two options here. If you want, you can directly talk to actual university officials, or you can also connect with College Vidya experts for free audio, video career counseling as well. And these counselors will stay connected with you from the start of admission till your placement. And here you also get the add to compare feature, where you can easily compare the universities you like based on 30 plus important factors like fees, approvals, placements, student rating, EMI facility, etc. And another good benefit with College Vidya is, for fees they will provide you EMI options even if the university is not providing it. And the best part is they can also redirect you to the actual university website so that you can be saved from potential scams. Further, they also provide you placement support services and online career booster programs which are worth ₹6,999, but they are offering it for free at this point of time. I will put the link in the description. You can check it out from there. And then you can also join their huge CV community for networking. College Vidya also has jobs and internship portals which is accessible to the students from day one of admission. Through this portal, you can directly apply to thousands of jobs and paid internships. So in short, it's like a one-stop solution for you. I've put the link to their website in the description as well as in my pinned comment. You can check it out from there. So अब अगर मैं सैलरी की बात करूँ इन अ टिपिकल FMCG फर्म फ्रॉम टॉप IIMs, मैं अगर मान लो HUL की बात करूँ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो CTC अराउंड 30 to 32 lakhs. यूजली ये 26-27 जो कॉम्पोनेंट होता है वो फिक्स होता है, बाकी वेरिएबल एंड ज्वाइनिंग बोनस होता है. सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ अ सैलरी फॉर अ फर्म लाइक HUL. HUL डेफिनेटली एक बहुत हाई पेइंग कंपनी है. फॉर देयर आर अदर फर्म्स एज वेल लाइक एशियन पेंट्स, आप वहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो 25-26 जैसी CTC रहेगी. देयर आर मेनी अदर FMCG फर्म्स एज वेल लाइक विप्रो कंज्यूमर गुड्स भी एक फर्म है, वहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 26-27 लाख की सैलरी. कोलगेट पामोलिव भी एक FMCG फर्म है. कोका कोला एक अच्छा FMCG फर्म है. टिपिकली CTC आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन फर्म्स की 25 से 32-33 लाख तक इनकी CTC रेंज रहती है. मोस्टली कॉम्पोनेंट FM मार्केटिंग फर्म्स का जो रहता है वो फिक्स्ड ही रहता है. येस, 2-3 लाख का कॉम्पोनेंट वेरिएबल एंड ज्वाइनिंग बोनस हो सकता है. एंड इफ यू आर इन अ सेल्स प्रोफाइल इन अ फर्म अदर देन FMCG, से आप माइक्रोसॉफ्ट में हो, बहुत रेप्यूटेड फर्म है, बट आप अगर उसमें सेल्स प्रोफाइल में हो, स्पेशली मान लो बिजनेस डेवलपमेंट भी बोल सकते हो उसको, तो आपकी टिपिकल सैलरी रहेगी 12, 13, 14 इस तरीके की सैलरी रहेगी. एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट मच लेस कंपेयर टू FMCG फर्म, एंड इसलिए ये फर्म्स यूजुअली सेल्स प्रोफाइल के लिए टॉप IIMs में नहीं आती है. आप अगर माइक्रोसॉफ्ट को टॉप IIMs में आता हुआ देखोगे तो दे कम फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स वेयर द सैलरी इज अगेन वेरी डिफरेंट. सेल्स प्रोफाइल के लिए ये टॉप IIMs में नहीं आती है इस टाइप के फर्म्स. एंड ऑब्वियसली रिटेल बैंकिंग में भी सेल्स रोल हो सकता है. देयर एज वेल इट्स वेरी डिफरेंट सैलरी. अगेन 10 लाख 12 लाख का सैलरी होता है वहाँ पर. एंड अगेन दीज रोल्स आर समथिंग यू यूजुअली डू नॉट सी इन द टॉप MBA कॉलेजेस. एंड अगर मैं मार्केटिंग रोल्स में सैलरी ग्रोथ का बात करूँ, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केटिंग में सैलरी ग्रोथ इज नॉट एज फास्ट एज इट हैपन्स इन कंसल्टिंग. यूजुअली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10% ईयर ऑन ईयर आपकी सैलरी हाइक होती रहेगी. प्रमोशन में मे बी 30% आपको मिलेगा अलॉन्ग विथ योर एनुअल हाइक. सो मैं अगर टिपिकली एक फर्म लाइक HUL का अगेन एग्जाम्पल हुई, एक
एक FMCG फर्म का एग्जाम्पल लूँ तो आप मान लो 30 CTC से शुरू करते हो, आफ्टर 5-6 ईयर्स यू विल बी समवेयर अराउंड 45 या 50 के रेंज में। इफ़ यू आर अ गुड परफॉर्मर मे बी 50 लाख, और अगर आप अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो मे बी 40 to 50 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यू वुड बी देयर आफ्टर 5 or 6 ईयर्स इन अ टिपिकल FMCG फर्म। एंड ऑब्वियसली इस सैलरी को अगर आप कंपेयर करो विद कंसल्टिंग फर्म्स लाइक मैकेंसी, बेन, BCG, वहाँ पर आफ्टर 5-6 ईयर्स एट एंगेजमेंट मैनेजर लेवल पीपल माइट बी अर्निंग इन 60-70 लाख की CTC हो सकती है उनकी, डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली इट्स वेरी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द मार्केटिंग फोक्स आर अर्निंग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कम्स एट द कॉस्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। एंड वर्क लाइफ बैलेंस ऑब्वियसली इन इनिशियल फ्यू ईयर्स जब आप ASM के रोल पे हो, हेक्टिक रहेगी लाइफ, काफ़ी सारा फील्ड विजिट रहेगा, बट इन टर्म्स वर्किंग आवर्स इट विल बी मच लेस कंपेयर टू कंसल्टिंग। एंड उसके बाद भी आप अगर ब्रांड मैनेजर बनोगे एंड सो ऑन एज यू प्रोग्रेस अहेड, वर्क लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है इन मार्केटिंग कंपेयर टू से अ कंसल्टिंग फर्म। कंसल्टिंग फर्म में एज यू गो अहेड पार्टनर भी आप बन जाओगे, देन ऑल्सो वर्क लाइफ विल बी रियली बैड, एंड दैट्स वाई अ लॉट ऑफ पीपल आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इन कंसल्टिंग switch to marketing firms as well. They are ready to take a little bit of hit in their salary as well, because after a point of time वर्क लाइफ बैलेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, योर फैमिली बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड कंसल्टिंग में वो पॉसिबल होता नहीं है। एंड दैट्स वाई मार्केटिंग ऑफर्स द राइट बैलेंस बिटवीन सैलरी एंड वर्क लाइफ। उसके बाद लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड द टाइप ऑफ CV दैट इज प्रेफर्ड इन मार्केटिंग रोल्स। सो अगर आप एक B स्कूल एस्पिरेंट हो, अगर आप अभी MBA में जाना चाहते हो एंड मार्केटिंग रोल्स के लिए एस्पायर कर रहे हो, देन मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप के CVs यूजली शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं मार्केटिंग फर्म से। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेशर्स, येस डेफिनेटली एक स्लाइट प्रेफरेंस रहती है फ्रेशर्स को, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ऑब्वियसली एज का एक फैक्टर रहता है। इनिशियल ईयर्स मैंने जैसे बताया ग्राउंड विजिट बहुत रहेगा, फील्ड विजिट बहुत रहेगा, सो दे वुड प्रेफर पीपल हु डू नॉट हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एज एक फैक्टर बन जाता है, दैट्स वाई फ्रेशर्स आर प्रेफर्ड इन दिस पर्टिकुलर रोल। उसके साथ साथ फ्रेशर्स के साथ साथ बस एक क्राइटेरिया एज नहीं है, वो एक बहुत स्मॉल क्राइटेरिया रहती है, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे टिपिकल स्किल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है मार्केटिंग के लिए। लाइक IB में अगर आप जाओगे आपकी एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसल्टिंग में एकेडमिक्स येस इंपॉर्टेंट है, बट मार्केटिंग में एकेडमिक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केटिंग में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है आउटसाइड एकेडमिक्स, आपने कितना कुछ किया है। अगर आपका एक्स्ट्रा करिकुलर सेक्शन अच्छा है, अगर आपका पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा है, देन इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। एंड ऑब्वियसली मार्केटिंग में आपके टीम मैनेजमेंट स्किल्स, काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स आपको मैनेज करने हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपके पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाते हैं आपके CV के लिए। सो इसलिए डेफिनेटली इस टाइप के कीवर्ड्स वे यू हैव हेल्ड सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लीडरशिप और बहुत सारी स्किल्स हैं लाइक मार्केट रिसर्च हो या फिर क्वालिटेटिव एबिलिटीज़, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टू ऐड इन योर CV। डेटा स्किल्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत डेटा आपको एनालाइज करना पड़ेगा इन द मार्केटिंग फर्म एज वेल, बट ऑब्वियसली डेटा स्किल्स काफ़ी सारे और रोल्स में भी एप्लीकेबल होते हैं। सो इन शॉर्ट टू समराइज, एकेडमिक सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मार्केटिंग फर्म्स के लिए। आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर सेक्शन, पोजीशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन, इनको हाईलाइट करने का ट्राई करो। अगर आपने पास्ट में कोई FMCG फर्म के साथ वर्क किया है उसको हाईलाइट करो, कोई इंटर्नशिप किया है उसको हाईलाइट करो। अगर कोई कोर्सेज किए हैं इन मार्केटिंग में भी, ब्रांड मैनेजमेंट में किया हो, डिजिटल कॉमर्स में किया हो, E-कॉमर्स में किया हो, उनको हाईलाइट करो। इट हेल्प्स यू शो द इंटरेस्ट एंड विल डेफिनेटली हेल्प यू गेट द शॉर्ट लिस्ट। फाइनली टू टॉक टू यू अबाउट द स्किल्स, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो शायद आपको ये पर्टिकुलर प्रोफाइल अच्छा नहीं लगे एंड मे बी यू वुड नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस फास्ट इन दिस मार्केटिंग प्रोफाइल एज वेल। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हो जाता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इन मार्केटिंग। अगर आपको डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा नहीं लगता है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू मैनेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, आपको डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था सेल्स ऑफिसर से भी बात करना पड़ेगा। सो अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है, देन काइंड ऑफ इट माइट बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टे इन दिस रोल। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट ऑब्वियसली डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल्स में इंपॉर्टेंट होता है, बट मार्केटिंग में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ काइंड ऑफ क्रिएटिविटी भी इंपॉर्टेंट होती है मार्केटिंग प्रोफाइल में, स्पेशली अगर आप ब्रांड मैनेजर बनते हो तो आप काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहोगे। कैसे पोजीशन करना है प्रोडक्ट को, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो उसके लिए काइंड ऑफ क्रिएटिविटी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ नॉट एट ऑल क्रिएटिव, आप ज़्यादा थ्योरेटिकल पर्सन हो, सो मे बी दिस काइंड ऑफ रोल कैन बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया था डेटा स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है, बट अगेन दिस इज काइंड ऑफ अ स्किल दैट इज इंपॉर्टेंट
इन मैनी अदर रोल्स एज वेल। फाइनेंस में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंसल्टिंग में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट मार्केटिंग में भी यू कैन एक्सपेक्ट कि ये स्किल इंपॉर्टेंट रहेगा। यू विल गेट अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट मार्केट्स अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड यू हैव टू बी वेरी श्योर हाउ टू एनालाइज देम। सो ये थे कंप्लीट डिटेल्स अबाउट MBA इन मार्केटिंग। अगर आप और MBA स्पेशलाइजेशंस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में जानना चाहते हो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैंने और बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो बनाया था MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स पे, एंड अगर आप उसको देखना चाहते हो देन मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा वो पर्टिकुलर वीडियो, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ।